Hello students, a very warm good afternoon to all of you. I am Prince standing here before all of you for your help in economics. Today we will start a cardinal approach. We have to study about the consumer behaviors. As students, you know very well that we have completed 2 chapters of microeconomics. One chapter is Introduction, Economics and Economy, and the second chapter was related to center problems of an economy. 2 chapters have been completed in a better way, and in today's class we have to study about a consumer's equilibrium utility analysis. This is the name of the chapter. Okay. Now, before proceeding this chapter, it is very important to tell you about the meaning of a consumer. Okay, the first question arises that who is a consumer? You know very well, even from the day one you have been reading about a consumer, that a consumer is that individual who consumes different goods and services with the objective to maximize his satisfaction. This is called as a consumer. This person known as a consumer. Okay, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना. ठीक है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली स्टडी करना है अबाउट यूटिलिटी. ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास ये राइज होता है कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी किसको बोला जाता है? ठीक है, द पावर ऑफ वांट सेटिस्फाइंग इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी. द पावर ऑफ वांट सेटिस्फाइंग is called utility. Understand? ठीक है, अब देखो आपको ये बात जस्ट प्लीज 1 सेकेंड. The power of want satisfying is called as a utility. ठीक है, for example, I give you example here. Let's suppose X person is a thirsty. Okay, he is a very thirsty and he drinks 1 glass of water. He would like to drink 1 glass of water. It's not working. Let's suppose, please be on the board. X person is a thirsty and he would like to drink 1 glass of water. Okay, now this water has a power to satisfy the thirst of an individual. Okay, then the same person has acquired satisfaction after drinking a 1 glass of water. So this satisfaction will be known as the utility in economics. Understand? ठीक है, X person है, उसको प्यास लगी है, उसने पानी पिया, तो वाटर में वो पावर है जिसने उसकी थर्स्ट को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया. तो वो वाटर से उसको क्या मिली? सेटिस्फैक्शन मिली, और उसी सेटिस्फैक्शन को ही हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं बच्चों? यूटिलिटी. ठीक है, तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर satisfaction. Understand? After that we can take example of Y person. Let's suppose Y person is very hungry and he would like to consume 2-3 chapatis to satisfy his hunger. Understand? So obviously this will be known as a satisfaction. ठीक है, after consuming 2-3 chapatis constantly, the hunger of the Y person has been satisfied. It means what has he acquired? He has acquired satisfaction out of consuming these 3 chapatis constantly. This will be known as a satisfaction. ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, एक X पर्सन का और एक Y पर्सन का. ठीक है, X पर्सन जो है वो काफी थर्स्टी है, उसको प्यास लगी है, और Y पर्सन जो है उसको भूख लगी है. तो प्यास लगी है हमें X पर्सन को, तो अगर उसने पानी पिया तो पानी में वो पावर है जिससे X पर्सन की जो थर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो जाती है. तो X पर्सन को क्या मिली है? सेटिस्फैक्शन मिली है, और इसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं. इसी तरीके से दूसरे का हम एग्जांपल ले सकते हैं. Y पर्सन का, Y पर्सन इज हंग्री और उसे भूख लगी है और उसने खाना खाया, और खाना खाने से उसकी जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके क्या मिला? सेटिस्फैक्शन मिली, और इसी सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं?
यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखो यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यूटिलिटी के कुछ फीचर्स होती हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं यूटिलिटी की, यूटिलिटी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड? ठीक है, जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इमोशंस। ठीक है, द वर्ड सब्जेक्टिव इज कंसर्न्ड विद द इमोशंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, ठीक है, तो इट वेरीज अपॉन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। लेट्स सपोज अब कोई एक्स पर्सन है, वो स्मोकिंग करता है। ठीक है, उसको स्मोकिंग अच्छी लगती है, स्मोकिंग से उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, नो डाउट कि स्मोकिंग इज अ वेरी इंजीरियस टू द हेल्थ एंड वी शुड नॉट टेक इट। ठीक है, वी शुड ऑलवेज अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट गिव्स अ वेरी अनफेवरेबल इंपैक्ट ऑन द हेल्थ। ठीक है, बट उसके बावजूद जो स्मोकर्स हैं, अगर उन्हें पूछा जाए कि उन्हें स्मोकिंग से क्या यूटिलिटी मिलती है, तो you will find that these people get a maximum satisfaction with the smoking। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि यूटिलिटी जो है वो क्या है? एक सब्जेक्टिव टर्म है एंड इट वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट बात करते हैं, यूटिलिटी हैज नो रिलेशन विद मोरालिटी। यूटिलिटी हैज नो रिलेशन विद मोरालिटी। ठीक है, इसका बेटा नैतिकता के साथ, एथिकल वैल्यूज के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अब यहाँ पे स्मोकिंग का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, स्मोकिंग क्या है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बट जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि उनकी क्या मोरल वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारे एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है, बट उन लोगों के लिए ये क्या है? इट इज अ नेचुरल, उनके लिए आम बात है। तो उनको यूटिलिटी से मतलब है, तो यूटिलिटी को किसी भी मोरालिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, इसीलिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। ये तो दो हो गए कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव भी है और यूटिलिटी का मोरालिटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। थर्ड अगर हम बात करें, ठीक है, यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल। यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो यूटिलिटी हम ले रहे हैं, जिससे हमें यूटिलिटी मिल रही है, वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से बेटा ड्रिंक है, ठीक है, वाइन अगर ली जाए, कोई पर्सन अगर वाइन लेता है तो वाइन इज अ वेरी वेरी इंजीरियस टू द हेल्थ, बट उसको वाइन जो है, जो ड्रंकर्ड्स हैं वो वाइन लेते हैं और उनको उसी से ही क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमें सिर्फ यूजफुल चीजों से ही मिल सकती है। ठीक है, जो चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो चीजें हमारे लिए बेकार हैं, उनसे भी लोगों को यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, इसके बाद यूटिलिटी जो है ये एक तरह से हमारे पास रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप, या यू कैन से यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि विद द पासेज ऑफ टाइम यूटिलिटी चेंजेस। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समर की बात करें, ठीक है, तो समर में हम आइसक्रीम की डिमांड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, समर में अगर आइसक्रीम कंज्यूम की जाती है, उससे हमको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम विंटर की बात करें, तो विंटर में हमें क्या मिलता है? जैसे हम मान लो कॉफी पीते हैं, ठीक है, इफ वी टेक अ 1 कप ऑफ टी कॉफी, ठीक है, तो हमें कॉफी और टी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी विंटर में। ठीक है, तो मौसम के अनुसार, वक्त के अनुसार, टाइम के अनुसार यूटिलिटी जो है वो
चेंज होती जाती है, तो इसीलिए यूटिलिटी जो है एक तरह से रिलेटिव टर्म भी होती है। ठीक है, ये थोड़े से फीचर्स होते हैं। यहां पे मैंने फीचर्स क्यों लिखे हैं, ताकि आपको यूटिलिटी का मतलब क्लियर हो जाए। जब भी टीचर्स यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लास में भी बच्चों को हम जब करवाते हैं, तो जनरली बच्चे क्या समझ लेते हैं, जितनी भी यूजफुल चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, उन्हीं से यूटिलिटी का मतलब जो है ना, यूटिलिटी का जो मीनिंग है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों को बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉमोडिटी है, चाहे वो आपके लिए यूजफुल है, चाहे वो हार्मफुल है, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, अलग अलग पर्सन पर ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो यहां तक तो मैंने आपको सिंपल ये बताया कि यूटिलिटी किसको कहते हैं, और यूटिलिटी का जो अर्थ है उसको मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे समझा दिया है। ठीक है, अब हमारे जो सिलेबस में जो हमें स्टडी करना है, जो मेन मुद्दा है, वो अब स्टार्ट होगा। देखो बच्चों, in our syllabus even in the 11th standard we have to study about 2 approaches. ठीक है, हमें 2 approaches study करनी है। We are supposed to study 2 approaches to study the consumer behavior. ठीक है, approaches to study consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं बेटा। ठीक है, अब वो 2 अप्रोचेस कौन सी हैं हमारे पास? एक अप्रोच आती है बच्चे हमारे पास कार्डिनल अप्रोच, वन इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल अप्रोच, अंडरस्टैंड, एंड सेकेंड अप्रोच इज द ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, यू कैन से कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी कह सकते हो आप, कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कार्डिनल अप्रोच है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 3, अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 4। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो कार्डिनल अप्रोच जो है, ये सबसे पहले किसने इकोनॉमिक्स में प्रपाउंडेड करी? ठीक है, कार्डिनल अप्रोच कौन लेके आया इकोनॉमिक्स में? ठीक है, कार्डिनल अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कोई एक इकोनॉमिस्ट नहीं है जिसने कार्डिनल अप्रोच दी है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, यहां तक कि इवन अगर कुछ जो टीचर्स भी देख रहे हैं उस टाइम यहां पर लाइव जो हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल माई टीचर्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, I am sharing this very important information and I request you, when you will go to your school, when you will interact with your students, please try to share this information with your students also. Okay, देखो generally it is always taught to us that cardinal approach was given by Dr. Marshall. ठीक है, this is absolutely right, it is a Marshallian approach, it is given by Dr. Marshall, but before Dr. Marshall, actually cardinal approach was given in economics by new classical economists. Okay, सबसे पहले ये किसने दी थी cardinal approach जो है? I am writing here, cardinal approach was propounded by न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ओके, अब वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन से हैं? देयर वर सो मैनी इकोनॉमिस्ट लाइक ड्यूपिट्स, वालरस, जेवंस, मैंजर एटसेट्रा, अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले इन इकोनॉमिस्ट ने कार्डिनल अप्रोच इकोनॉमिक्स में दी। ठीक है, इसके बाद इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन किया गया वो किया गया डॉक्टर मार्शल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर मार्शल आए लेटर ऑन, एंड देन द डॉक्टर मार्शल हैड गिवन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, और उस टाइम पे डॉक्टर मार्शल को कोऑपरेट किया प्रोफेसर पीगू ने। प्रोफेसर पीगू, ओके,
प्रोफेसर पीगू ने सिर्फ कोऑपरेट किया था, ठीक है, बट इस थ्योरी का एक्चुअल क्रेडिट जो एक्सटेंशन वर्जन का है वो किसको जाता है? डॉक्टर मार्शल को, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच का जो नाम फेमस हुआ इकोनॉमिक्स में वो किसके नाम से हुआ? डॉक्टर मार्शल के नाम से, ठीक है। डॉक्टर मार्शल आए, डॉक्टर मार्शल ने कहा, अब क्योंकि दिस इज गिवन बाय डॉक्टर मार्शल तो इसीलिए बच्चों कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्शलियन अप्रोच, अंडरस्टैंड। अब ये जो मार्शलियन अप्रोच है ये क्या कहती है? मार्शलियन अप्रोच ये कहती है कि इसका जो मेन मुद्दा है, कि जो पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि डॉक्टर मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी को अगर मेजर करना है तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस कंप्लीट नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स। डॉक्टर मार्शल ने कहा कि लेट्स सपोज कोई एक्स पर्सन है, उसने एक चपाती कंज्यूम करी तो उसको 1% सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। उसने मान लो एक गिलास पानी पिया तो उसको 2% सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने एक अच्छी सी नोटबुक ली तो उसको 3% सेटिस्फैक्शन मिली। यानी कि अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं और उन्हें जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। किस में काउंट कर सकते हैं? नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ये जो एक मेथड है, दिस मेथड वाज गिवन टू अस बाय डॉक्टर मार्शल। तो जो मेन मुद्दा है इसका वो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 एटसेट्रा, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसका कार्डिनल अप्रोच का, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच किसने दी बच्चों? कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन टू अस बाय डॉक्टर मार्शल, ओके। नो डाउट इट वाज गिवन टू अस बाय द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बट डॉक्टर मार्शल हैड प्रोवाइडेड द extended version of the cardinal approach in which he stated that the utility can be measured in the cardinal numbers like 1 2 3 4 etc. Understand? अब देखो बेटा, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं एंड डिफरेंट इकोनॉमिस्ट गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपिनियंस। कोई भी इकोनॉमिस्ट एक दूसरे के ओपिनियन से इतनी जल्दी से सहमति प्रकट नहीं करता। इसके बाद जब यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट डॉक्टर मार्शल ने दिया, डॉक्टर मार्शल के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया प्रोफेसर हिग्स ने। अब आ जाओ ऑर्डिनल अप्रोच पर, ठीक है। दिस ऑर्डिनल अप्रोच इट वाज गिवन टू अस बाय प्रोफेसर हिग्स, अंडरस्टैंड। प्रोफेसर हिग्स आए, प्रोफेसर हिग्स ने कहा कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव measured the utility in the cardinal numbers. Ki like suppose that one person has consumed the one chapati and he acquired 10% satisfaction, and then he consumed a second chapati and after that he acquired 9% satisfaction. What is this? This is completely wrong way to calculate the utility, okay. So he came, he studied the theory given by Dr. Marshall and with immediate effect he criticized the theory of Dr. Marshall and Professor Higgs. He has taken an initiative to propound his new theory to measure the utility in the vast literature of economics. Understand? तो हमारे पास प्रोफेसर हिग्स आए और इसीलिए क्योंकि इट इज गिवन ऑर्डिनल अप्रोच जो है गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स, ठीक है। ये प्रोफेसर हिग्स ने दी है, इसीलिए इसको हम हिग्सियन अप्रोच भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ हिग्सियन अप्रोच, अंडरस्टैंड, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ हिग्सियन अप्रोच। अब अकॉर्डिंग टू हिग्स, एज पर the point of view of Professor Higgs, utility can be measured according to the ranking system, ठीक है। रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है। रैंकिंग सिस्टम क्या होता है?
प्रोफेसर हिग्स आए, उन्होंने कहा कि ये जो 1 2 3 वाला कार्डिनल कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता और ये इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ठीक है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल रेलिवेंस है ही नहीं। इसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच जो दी प्रोफेसर हिग्स ने, उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं माप सकते, हम रैंक्स के अकॉर्डिंग माप सकते हैं। रैंक्स के अकॉर्डिंग कैसे मापा जा सकता है? लेट्स सपोज मोर एंड लेस, हाई लो, ओके, सुपीरियर इंफीरियर एटसेट्रा। वो कहते हैं कि आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे को 2 चपातीस कंज्यूम करने से अधिक सेटिस्फैक्शन मिली है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, ठीक है, और 1 चपाती से मेरे को कंज्यूम करने से मेरे को कम सेटिस्फैक्शन मिली है। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर्स के अंदर यूटिलिटी को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों पॉइंट्स में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब हमने यहां पर बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, ठीक है, ये हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हमें कार्डिनल अप्रोच को भी अंडरस्टैंड करना है, हमें ऑर्डिनल अप्रोच को भी अंडरस्टैंड करना है। एंड आफ्टर स्टडीइंग द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, लेटर ऑन वी हैव टू फाइंड अ कंक्लूजन दैट विच अप्रोच सीम्स टू बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। अंडरस्टैंड? वो हम बाद में कंक्लूजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे आपको क्या बताया? वी हैव स्टडीड द बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ 2 अप्रोचेस, वन इज अ कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज अ ऑर्डिनल अप्रोच। वी कैन से हियर दैट कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन टू अस बाय Dr. Marshall. That is why it is known as a Marshallian approach, and according to the Marshallian approach, it is stated that utility can be measured in cardinal numbers like 1 2 3 etc. Okay. On the other hand, Professor Higgs came, he studied the theory given by Dr. Marshall, and with immediate effect he criticized the theory. He stated his he propounded his new theory in economics by giving a logic that this is a wrong way to calculate the utility which is given to us by Dr. Marshall. He said that utility can be measured according to the ranking system. Okay, ranking system like means high, low, more, less, superior, inferior, etc. Understand? अब देखो चैप्टर 3 में हमें क्या पढ़ना है? कार्डिनल अप्रोच, और चैप्टर 4 में हमें क्या पढ़नी है? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। यहां तक जो मैंने आपको बताया है बच्चों, ये क्या है? दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी का भी इंट्रोडक्टरी सेक्शन है और जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में तो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट द कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब कार्डिनल अप्रोच की हम बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट 2 टर्म्स, ठीक है। वो टर्म्स 2 टर्म्स कौन सी हैं बच्चों? एक है हमारे पास टोटल यूटिलिटी और दूसरी टर्म है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? एक टर्म है हमारे पास टोटल यूटिलिटी और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आप देखिए, आई कैन राइट हियर, यूटिलिटी जो है हमारे पास, इट कैन बी मेजर्ड between 2 parts. One is called as the total utility, right, and second is a marginal utility. Understand? Okay. अब देखो जो total utility का concept है, it is a sum of total utility derived from the consumption of all units of a commodity. Understand? ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? ये सम होता है। सम का मतलब क्या होता है? प्लस, जोड़ करना है हमें, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पे टोटल यूटिलिटी का एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज, यहां तक तो हमने टोटल यूटिलिटी का मीनिंग लिख लिया, ठीक है। अब देखो टोटल यूटिलिटी में लेट्स सपोज एक्स पर्सन है, ए मान लो एक पर्सन है,
ठीक है, ये क्या करता है, ही कंज्यूम्स, और एक्स हमारे पास एक कॉमोडिटी है, एक्स क्या है, कॉमोडिटी है, ठीक है। हम देखो ए पर्सन क्या करता है, एक्स की 2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड, ठीक है, 2 यूनिट्स एक्स कॉमोडिटी की 2 यूनिट्स कंज्यूम की जाती हैं, तो उससे हमको सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है, 10 यूटिल्स, कितना मिला, 10 यूटिल्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद फिर 2 यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी कंज्यूम की, अगर उसकी फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं टोटल एक्स कॉमोडिटी की, ठीक है, एक मिनट यहां पे मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, एक्स कॉमोडिटी की टोटल यूनिट्स कितनी है, 2 यूनिट्स, ठीक है, ओके। अब अगर इसकी हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है कंज्यूम की जाती है, 2 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट प्रोवाइड्स 10 यूटिल्स एंड सेकेंड प्रोवाइड्स लेट्स सपोज 9 यूटिल्स, अंडरस्टैंड, ठीक है, फर्स्ट कितना देता है, 10 यूटिल्स, और सेकेंड कितना देता है, 9 यूटिल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, 10 + 9, ये क्या है, यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 10 + 9 = 19, 19 जो होगा it will be considered as a total utility, it will be considered as a total utility, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, इट रेफर्स टू additional unit on account of on account of the consumption of additional unit of a commodity. ओके, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी का, ये है इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अंडरस्टैंड करनी है हमें, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सपोज 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम जो है वो कंज्यूम की गई हैं, 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम हैव बीन कंज्यूम्ड, ठीक है। 2 यूनिट्स आइसक्रीम की कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, पहले तो 15 यूटिल्स, कितना मिला, 15 यूटिल्स, अंडरस्टैंड। इसके बाद आइसक्रीम की 3 यूनिट्स कंज्यूम की गई, 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम हैव बीन कंज्यूम्ड, ठीक है। अब कितने % सेटिस्फैक्शन मिला, 20। तो ये तो हमारे पास क्या होगी बच्चों, यूनिट्स, ठीक है, और ये है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक मिनट, ये यहां पे हम लिखते हैं सिर्फ सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल अभी मैं आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, गॉट इट, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है इसका मार्जिनल यूटिलिटी का, MUN = TUN -1, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड, TUN का मतलब कितना हुआ, सबसे पहले कितना आ जाएगा यहां पर, हम यहां पे लिखेंगे लास्ट वाली यूनिट TU3 TU3 -1, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो TU3 कितना है हमारे पास, 20, ठीक है, और फिर यहां पर कितना है, अब TU3 -1 कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहां पे TU3 और TU3 -1 कितना हो जाएगा, TU2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, TU3 कितना है, 20, TU2 कितना है, 15, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। ये जो 5 आया है इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल
यूटिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। ठीक है, इसके बाद अब आपको एक और एग्जांपल भी इसका देना है कि जैसे टी यू इक्वल टू समेशन एम यू भी होता है। ठीक है, समेशन एम यू। ठीक है, अब फॉर दिस आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दैट। यहां पर मैंने आपको क्या बताया? आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो सभी बच्चे, मार्जिनल जो टर्म है, मार्जिनल वर्ड जो है हमारा यूटिलिटी में शुरू होता है। इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इकोनॉमिक्स में जहां पर मार्जिनल वर्ड यूज होता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन में भी यूज होता है, कॉस्ट में भी यूज होता है, रिवेन्यू में भी यूज होता है मार्जिनल वर्ड, और यूटिलिटी में भी होता है। अंडरस्टैंड? अभी बाकी की जो टर्म्स हैं वो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप जहां तक मैंने आपको करवाया यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, अगर तो एक होता है रिलेशन और एक होता है एस्टिमेशन। ठीक है, एक होता है रिलेशन और एक होता है एस्टिमेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टीच करूंगा एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अंडरस्टैंड? ठीक है, इस जो हमारे पास एस्टिमेशन है, इस एस्टिमेशन में आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। नंबर वन, पहले तो ये जो मैंने आपको टर्म अभी बता दी है कैसे इसको प्रूव करना है। इसके बाद हमारे पास आता है टी यू इज इक्वल टू समेशन एम यू। ठीक है बच्चों, ये भी टर्म होती है। ठीक है, अगर हम सारा मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाता है? टोटल यूटिलिटी के इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आई कैन गिव एन एग्जांपल। यहां पे देखो एक टेबल मैं बनाता हूं आपके लिए। यहां पे लिखा यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी जो है हमने यहां पे लिखा 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास है टी यू एक्स। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इसको हाइपोथेटिकली आप ले सकते हो 100 190 100 190, लेट्स सपोज 270। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हो 340 एंड 400। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं? पहले का तो अब देखो कुछ भी जैसे तो हम कर सकते हैं 100 माइनस 0 तो क्या आएगा? 100 ही आएगा यहां पर तो। ठीक है, या आप इसको ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है? 190 माइनस 100 तो यहां पे क्या आएगा? 90 80 70 60। अंडरस्टैंड? ठीक है, 90 80 70 एंड 60। ठीक है, अब आपकी वैल्यू देखो हमारे पास ये कितना है। अब हमें क्या करना है? 100 190 270 340 और 400। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स हैं। टोटल कितनी है? 400। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास गिवन दे रखी हैं। ठीक है, अगर मैं इन टर्म्स में क्या करूं, यहां पर मैं 100 भी लिख देता हूं, लेट्स सपोज 100। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? टी यू इक्वल टू समेशन एम यू, यानी कि टोटल वैल्यू इसकी कितनी है? 400। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब अगर मैं इन सब का सम कर देता हूं, यानी कि मैंने अगर किया 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 400 के। अंडरस्टैंड? ठीक है, और 400 ही मैंने यहां पे टर्म ली थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी यू एक्स है वो किसके बराबर है? समेशन एम यू के। ठीक है, यानी कि टी यू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 400, और अगर मैं इन सब की वैल्यू ऐड कर दूं तो मेरा भी कितना आ रहा है? 400।
अंडरस्टैंड, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर ये बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एस्टिमेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, दिस इज एब्सोल्युटली राइट एस्टिमेशन। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको ये तो पता चल गया कि इनको किस तरीके से एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। अब हमें इसका इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। अगर डायग्राम देखा जाए, देखो पहले हमें क्या करना है, वन साइड वी कैन टेक ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहां पर हमने क्या लिया है, ओ वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ओ एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। और ओ वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टी यू एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। तो यहां पर हम ले सकते हैं टी यू एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा सबको? अगर बच्चे आप लाइव देख रहे हो, इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 50 से लेकर 400 तक के डिस्टेंसेस पे हम लिखते हैं। अब क्योंकि 400 है लास्ट, 50, लेट्स सपोज 100 कॉम्बिनेशंस लेने हैं हमें 400 तक, तो हम 50-50 के गैप पे ले रहे हैं, ठीक है। 50, 100, देन 150, आफ्टर दैट 200, 250, 300, 350 एंड 400। इज इट क्लियर? अब हमारे पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कितनी है, 1 to 5। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक तरफ बनेगा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और एक तरफ बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इसके नंबर टी यू एक्स के इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो ग्राफ जाएगा वो टी यू एक्स का ऊपर की ओर, और यहां पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी का जो नंबर्स हैं वो क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड। एम यू एक्स जो है वो नीचे जाती है, ऑलवेज नीचे भी जाती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्यों नीचे जाती है, अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक नियम होता है, वो मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस लिए हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नीचे की ओर जाती है, ठीक है। तो ओके, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। 1 पर कितना है, 100, ठीक है। 1 पर कितना है, 100, तो पॉइंट हमने लगा दिया यहां पर। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद है 190, 192 पर 190 क्या है, 200 से थोड़ा सा नीचे, लेट्स सपोज ये मैं लगा देता हूं यहां पर। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद है 270, 273 पर हमारे पास पॉइंट आता है 250 से थोड़ा सा ऊपर, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद 4 पर 340, 340 कहां पे है, 300 और 350 से थोड़ा सा नीचे ये आ जाएगा यहां पर। गॉट इट, ठीक है। इसके बाद 5 पर क्या है, 400, ठीक है। अब 400 कहां पे आएगा, लास्ट में 5 पॉइंट पर, दिस इज 400, यहां पे आएगा 400 बिल्कुल इसके सीध में, ठीक है। ओके, अब ये पॉइंट्स पहले मैंने मिला दिए, ये देखो अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं क्या कहूंगा, टी यू एक्स। ये क्या है, टी यू एक्स के पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी देखो, यहां पे 1 पर तो क्या है, 100, तो 100 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, पॉइंट्स जो बना रहे हैं हम, 1 सेकेंड, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है 100,
100 पे 1 पे 100 आया, उसके बाद 2 पर कितना है 90, ठीक है, 2 पर 90 है तो 100 से थोड़ा सा नीचे यहां पर, ठीक है। इसके बाद 83 से थोड़ा सा नीचे यहां पर, ठीक है, बिल्कुल इक्विवेलेंट पे नहीं है ये पॉइंट, इसको रखेंगे यहां पर। अब भी गलत हो गया ये यहां पर, क्योंकि बोर्ड पर बनाना डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर अ टीचर। अब आता है 70, ठीक है, और अब वैसे भी अगर जो चौक से डायग्राम बनाए जाते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड कुछ और आता है, बिल्कुल लाइन्स इक्वल ही होती हैं, और इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पे बनाने में लिटिल भी डिफिकल्टी आ जाती है टीचर को। फोर्थ पर क्या है 70, 50 से थोड़ा सा ऊपर, 80 से नीचे यहां पर, ठीक है। इसके बाद 60, 50 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब यहां ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऊपर वाला जो डायग्राम है टोटल यूटिलिटी कर्व, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल यूटिलिटी कर्व, राइट। और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे मेरे को सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक दो, ठीक है। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, आई नीड अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आप इसको 1 मिनट स्टडी करो एंड आई एम कमिंग बैक, ठीक है। Yes, students, and I can see the queries. Tanshika has asked, sir, is it total utility is opposite of marginal utility? अब देखो, हम इसको अपोजिट नहीं कह सकते, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट तो बिल्कुल ही उसका उल्टा है, ठीक है। यहां पर हमें बात करनी है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर हम इन सबको ऐड करते जाएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये चीज हम इसको अंडरस्टैंड करना है। तो जब हम इसको अंडरस्टैंड करें तो ये इसके इक्विवेलेंट बोलेंगे, ना कि इसके अपोजिट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें यहां तक जो हमने समझा है, हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ। वी हैव स्टडीड अबाउट meaning of utility, we have studied about total utility, कार्डिनल और कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों, जो हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग समझा। मीनिंग समझने के बाद हमारे पास टॉपिक क्या आता है, जो हमारा एस्टिमेशन जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है उसको हमने स्टडी किया, ठीक है। अब हमें समझना है इसका रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखनी है, एक्चुअली एग्जाम में बच्चे क्या एरर करते हैं, व्हेन द टीचर आस्क्स अबाउट रिलेशनशिप दे शो द एस्टिमेशन इन द पेपर, व्हेन द टीचर आस्क्स अबाउट एस्टिमेशन then they explain about relation। तो वो बच्चे then they argue with the teacher कि मैंने तो ठीक लिखा है, मेरा तो ठीक है, इसको ठीक कर दो, मेरे को मार्क्स दे दो, जबकि वो बिल्कुल गलत हो जाता है। बच्चों एस्टिमेशन जो होता है, जो आपके सामने मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, दिस इज द एस्टिमेशन। और अब हम करेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप में हमने 3 कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। अब देखो वो कौन से रिलेशनशिप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। And the relationship between total utility and marginal utility can be explained with the help of table and diagram, okay। पहले मैं इसका बनाऊंगा आप टेबल and then I will explain the diagram, and on the basis of the diagram 3 relationship will be automatically clear to all of you, understand। अब देखो बच्चों relationship क्या है, here we can write relationship between
total utility and marginal utility, total utility and marginal utility, ठीक है। यहां पे देखो अब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब हमने देखा कि क्वांटिटी पहले तो हम लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की जा रही है, ठीक है, कितनी कॉमोडिटीज कंज्यूम की जा रही हैं, ठीक है। मान लो हमने कॉमोडिटीज कंज्यूम करी हैं 6, मान लो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमने लिखा है टोटल यूटिलिटी कितनी है हमारे पास 8, एट 14 18 20 देन 18, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी में पहले का तो 8 ही आएगा, 14 माइनस 8 अब करो तो कितना आएगा पहले। अब देखो यहां पर 8 माइनस 0 ऊपर करना है, ठीक है। तो पहले का तो किया हमने 8, ठीक है। फिर हमने क्या करना है 14 माइनस 8 तो कितना आया 6 4 2 0 एंड -2, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझो, यहां पे मैंने क्या समझाया है आपको, ठीक है। ये है बच्चों हमारी टेबल, ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। इस टेबल में ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 रिलेशनशिप्स आर प्रॉपरली क्लियर्ड हियर, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखो बच्चों, जब यहां पर वन कॉमोडिटी जो है हमारे पास, फर्स्ट कॉमोडिटी एक्स, यहां पे मान लो एक्स कॉमोडिटी होगी, एक्स की फर्स्ट कॉमोडिटी कंज्यूम की गई तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 8, 2 पर 14, 3 पे 18, 4 पर 20 और 5 पर 20, 6 पर 18, ठीक है। अब देखो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है दिस इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी जो है दिस इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, ठीक है। अब मान लो एक्स पर्सन ए पर्सन है, ए पर्सन ने क्या किया, ही हैज कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कॉमोडिटी, ठीक है। अब जो फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कॉमोडिटी है, लेट्स सपोज वो उसको हम ले लेते हैं चपाती, ठीक है। जो एक्स कॉमोडिटी है वो एक चपाती है, रोटी है। तो उसको जो ए पर्सन है ही इज वेरी वेरी हंग्री, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है एंड ही वांट्स टू कंज्यूम इट एज क्विक एज पॉसिबल। तो उसने क्या किया, फर्स्ट चपाती को कंज्यूम किया एंड ही हैज एक्वायर्ड 8% सेटिस्फैक्शन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट चपाती को कंज्यूम करने से उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, ही हैज कंज्यूम सेकंड चपाती, सेकंड चपाती कंज्यूम करने से उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पहले से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले उसको कितना मिल रहा था 8, अब उसकी थोड़ी सी जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, तो अब उसको 8 से कितने परसेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगा 6%, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब उसने क्या किया, ही हैज कंज्यूम थर्ड चपाती, ठीक है। तो पहले से सबसे हाईएस्ट, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उसको क्या मिलेगा उससे कम 4, ठीक है। अब उसने 4 चपाती और कंज्यूम कर ली, ठीक है। तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, सबसे ज्यादा कम 2, ठीक है। अब आप देखो यहां तक, इस लेवल तक जो है उसकी जो हंगर लेवल है ना, और जब तक उसने 4 चपाती कंज्यूम कर लिया ना, यहां पर उसकी जो हंगर है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुकी है, ओके। अब वो क्या करता है, ड्यू टू ओवर टेस्ट ही जस्ट कंज्यूम्स
अनदर चपाती, यानी कि उसने क्या किया, एक्स कमोडिटी जिसको हम चपाती कंज्यूम कर रहे हैं, उसने चपाती की 5th यूनिट भी कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो 5th यूनिट कंज्यूम करने से उसको ना तो कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कोई डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जितना पहले था उतना ही, तो बिल्कुल उसकी सेटिस्फैक्शन किस लेवल पे पहुंच जाएगी, 0 लेवल पर। ठीक है, यहां पर वो किस लेवल पे आ गया, 0 लेवल पर। अंडरस्टैंड? ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब उसने अपने लालचवश उसमें जस्ट ड्यू टू द ओवर टेम्पटेशन एंड ग्रीडीनेस फॉर कंज्यूमिंग द चपातीज, ही हैज कंज्यूम्ड 6 यूनिट ऑफ द एक्स कमोडिटी विच इज अ चपाती हियर। उसकी 6 यूनिट भी उसने कंज्यूम कर ली, तो अब उसका जो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो माइनस में चला जाएगा। माइनस में जाने से क्या होगा, उसकी बॉडी पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन आवर लाइफ। ओके, अगर वो उस कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर लेगा तो अब यहां पर आकर के उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, डिससेटिस्फैक्शन। और जब डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा तो डिससेटिस्फैक्शन में हो सकता है कि 6 यूनिट पर उसको पेट में दर्द हो जाए, उसकी वॉमिटिंग उसको लग जाए, ही माइट सफर फ्रॉम लूज मोशंस आल्सो। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको, फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और उसकी बॉडी पर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमें उतना ही खाना चाहिए, उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना कि अच्छा हो। ठीक है, यहां पे मान लो हमने एक चपाती के एग्जांपल से भी आपको ये टेबल समझाई। ठीक है, नाउ यू कैन टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ अ म्यूजिक। ठीक है, आप म्यूजिक का एग्जांपल ले लीजिए। हम कोई सॉन्ग है, बहुत नया सॉन्ग आया है और हम उसको स्टार्टिंग में सुनते हैं, तो हमें पहले तो वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, तो हमें पहली बार हमने उसको सुना तो हमें 8% सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरी बार सुनने से और कम, तीसरी बार और, चौथी बार और, पांचवी बार कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, 6th टाइम पे वो बज भी रहा होगा, तो हमारा जो एक क्रेज था उस सॉन्ग को सुनने का, वो क्रेज अब क्या हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हमें उसको सॉन्ग सुनने से कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ भी एक जो एक्साइटमेंट थी वो नहीं हो रही। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इससे बच्चों हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप आए। हमने यहां पे देखा कि जब टोटल यूटिलिटी जो है हमारे पास क्या है, इस पोजीशन पर, यहां पर टोटल यूटिलिटी इस एरिया में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अंडरस्टैंड? ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज, एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। इज इट क्लियर? ओके, नाउ यू कैन सी हियर 4th और 5th पॉइंट पर, यहां पर आकर के उसकी जो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। ठीक है, क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। और इस पोजीशन पर आकर के जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 हो चुकी है। ठीक है, हियर M स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम एंड Z स्टैंड्स फॉर 0। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस पॉइंट। अब देखो यहां पर टोटल यूटिलिटी उसकी क्या है, यहां पर डिक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस, और यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, सो हमारे पास क्या रिलेशन आ गए, 3। टोटल यूटिलिटी, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज अ मैक्सिमम या कांस्टेंट, यू कैन से एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ओके, एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। अंडरस्टैंड? ये 3 रिलेशनशिप हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, इसी के बेसिस पर ही वी हैव टू ड्रॉ द कर्व। ठीक है, कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो कर्व को ड्रॉ करने के लिए पहले हम, अब यहां पे कर्व जो हम बनाएंगे, हम 2 कर्व्स वी हैव टू ड्रॉ, वी आर सपोज्ड टू ड्रॉ हियर 2 कर्व्स। ठीक है, एक कर्व बनाएंगे हम टोटल यूटिलिटी का और दूसरा कर्व हमें किसका बनाना है, मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, तो फर्स्ट बच्चों we can draw the curve of total utility। थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो जाए तो प्लीज उसको मैनेज कर लेना। ठीक है बच्चों, ये OX है, ये OY है। ठीक है, यहां पर भी हम एक और डायग्राम बना सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, यहां पर भी हमने क्या लिया, OX एक्सिस, थोड़ी सी लाइन इसको बड़ा करना है, इसके बिल्कुल इक्विलिएंट होना चाहिए डायग्राम। OX एक्सिस
हियर वी कैन राइट ओ वाई एक्सिस, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, एंड हियर वी कैन राइट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां पर हमने पॉइंट लिखे, देखो कितने हैं, 8, 14, 18, 20, ठीक है, 4 ही पॉइंट है। तो हमने लिखा हमारे पास कितना है, 8, 14, जो पॉइंट से एज चीज लिख दो, 18 एंड 20, बस, ठीक है। यहां पर पॉइंट लिखा हमने, कितनी कॉमोडिटीज है, 6 तक, तो वी कैन राइट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को मिलाओ। अब यहां पर हमने ये भी लिखना है, यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी, यूनिट्स ऑफ एक्स कॉमोडिटी, ठीक है बच्चों। अब डायग्राम देखते जाओ और सारी जगह से ध्यान हटा करके ना इसके ऊपर लगा दो, क्योंकि ये जो डायग्राम चल रहा है ना, इसकी टेक्निकल नॉलेज होना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने यहां पे नंबर ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए। ये टॉपिक्स इतने इजी हैं, इतने सिंपल हैं कि मैं चाहूं तो 40 मिनट्स के अंदर सारा चैप्टर कंप्लीट कर दूं, ठीक है। पर मैं एक एक पॉइंट को इतने आराम से, बिल्कुल आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों ने अभी अभी इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया, टीचर्स के लिए टॉपिक्स कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो आपको एक एक पॉइंट आराम आराम से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बिल्कुल अपने लेक्चर की स्पीड जो है ना, मैंने बड़ी अभी स्लो रखी हुई है। तो आप हर जगह से बेटा ध्यान हटा करके ना कंसंट्रेट हियर कि सर क्या बना रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है TUX, यहां पर क्या है, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। अब देखो यहां से टॉपिक्स उठाते जाओ। जब फर्स्ट कमोडिटी एक्स की कंज्यूम की गई तो टोटल यूटिलिटी कितनी है, 8, ठीक है। हमने पॉइंट लिख दिया 1, मिला दिया। अब क्या हुआ, एक्स की 2 यूनिट्स कंज्यूम की गई हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है, 14, ठीक है। मिलाओ, 14 पर कितना हो गया, 2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, 3 पर कितना है, 18, थ्री पर 18, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद 4 पर कितना है, 20, फोर्थ पर 20, ठीक है। इसके बाद 5th पर कितना है, 20, तो 5th क्या वाले पॉइंट को सेम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इस पॉइंट पर ले जाओ इसको, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद क्या है, 6 पर कितना है, 18, अब 18 वाले पॉइंट को आगे बढ़ा दो, ये है बच्चों पॉइंट 6, ठीक है। अब हमें इन सब पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी बनाओ, देखो टोटल यूटिलिटी होगी इस तरीके से, इन सब पॉइंट में से आपकी टोटल यूटिलिटी जानी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां पे इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं so that you can get a proper idea about the total utility of X commodity. Understand? ठीक है, total utility of X commodity, ठीक है। अब यहां पर हमने पॉइंट रख देते हैं, लेट्स सपोज, चलो मैं जो पॉइंट रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस पॉइंट पर देखो, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, G, ठीक है। मान लो G रख दो, A रख दो, B रख दो, A रख लो, चलो ठीक है। अब देखो 0 to A जो है, यहां पर इस पॉइंट पर अगर हमने ये वाला सारा एरिया मैं कंसीडर करूं, ठीक है, O से लेकर A तक, ठीक है, क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर कंसीडर करता हूं, यहां पर ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पर क्या है, टोटल यूटिलिटी आकर क्या हो गई है,
मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कैसे है? 20 और 20, फोर्थ पर भी 20, फिफ्थ पर भी 20। इज इट क्लियर? 6 पर आकर के क्या हो गई है, यहां पर इस लेवल पर टोटल यूटिलिटी ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग हियर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये टोटल यूटिलिटी हो गई, ये यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी हो गया, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या अंडरस्टैंड करना है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम थोड़ा सा नीचे भी लेके जा सकते हैं, यहां पर भी, ठीक है, ओके। अब ये नीचे क्यों लेके गए हैं, अब इसका भी लॉजिक है, ठीक है। अब सेम पॉइंट बनाने हैं यहां पर भी, 2 4 6 8, यहां पे लिख दो 2 4 6 एंड 8, गॉट इट, ठीक है। पॉइंट्स जो ये रखे गए हैं, इस पॉइंट को, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इसको हम पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को आगे हम क्यों लेके गए हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा हमारा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये लाइन जो है ना सीधी नहीं आ रही, चलो 1 मिनट इसको बनाते हैं पहले। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो 1 पर कितना है, 8, 2 पर कितना है, 6, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास यूनिट्स जो है वो कंज्यूम की जा रही हैं, यहां लिख दो यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। यहां लिख दो बेटा आप -2 ये है, ठीक है। अब इसको नीचे लिखना वो मैं बताता हूं क्यों। अब देखो यहां पर नेक्स्ट है 4th, ठीक है। इसके बाद 4 पर क्या है, 2, इज इट क्लियर, ठीक है। 5th पे क्या है, 0, 5th पर क्या हो गया, 0 बिल्कुल, ठीक है। और यहां पर 5th पॉइंट पर ओके, और 6 पॉइंट जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर ये यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। और 6 पॉइंट पर हमारे पास क्या है, -2, तो -2 को नीचे ले गए हम, ठीक है, -2 को नीचे ले गए, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, पॉइंट दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमने, ये पॉइंट है हमारा बन गया नीचे, और ये डाउनवर्ड क्यों है, किस लिए नीचे, ये दिस इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। इसका नीचे होने का रीजन क्या है, यहां पर तो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, अंडरस्टैंड, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, इस पोजीशन पर आकर नीचे ये पॉइंट, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0, ठीक है। और ये जो मैंने पॉइंट सारा इसको, इस लाइन को यहां पे लेकर के आया हूं, यानी कि जहां पर पॉइंट हमारा मैक्सिमम है और पॉइंट यहां पे 0 है, ठीक है। ये मैक्सिमम और ये 0, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम और 0 में जो ये लाइन बनाई है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ अ सैचुरेशन, इज इट क्लियर, ठीक है। और ये पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट 6, ये माइनस में जा रहा है और यहां पर 0 हो जाती है, और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हो ऊपर से गिरना शुरू होती है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आके क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या 3 बातें अंडरस्टैंड करी, जब यहां पर फर्स्ट 0 से लेकर a तक जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पे देखो TUX एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहां से लेकर यहां तक देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, देन व्हाट इज हैपनिंग विद मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग,
Okay, so then marginal utility is decreasing. Point second, you can see here at यहां पर देखो, जब total utility, when the total utility is the maximum, at that time marginal utility is 0. यहां पर आके total utility क्या है, ये maximum point है बच्चों, this one is a maximum point. ठीक है, तो जहां पर maximum, when the total utility is the maximum, okay, here you can say that marginal utility of X commodity is 0. Got it? Right? इसके बाद क्या है, जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी ये 6 है, ठीक है, तो क्या हुआ, थर्ड पे है, जब टोटल यूटिलिटी हमारे पास ये डिक्रीज होना शुरू हुई है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया. ये था बच्चों रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में. ठीक है, एग्जाम में आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस विद एमयू, व्हेन एमयू डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस विद टीयू, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम व्हाट हैपेंस विद एमयू, एंड व्हेन एमयू इज 0 व्हाट हैपेंस विद टीयू. व्हेन टीयू इज डिक्रीजेस mu is negative, and when mu is negative, then what happens with tu? Okay, any type of question can be asked from the relationship between total utility of x commodity and the marginal utility of x commodity. ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया हमारे पास. नेक्स्ट टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दैट. ठीक है, अब देखो आई कैन राइट हियर, नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू. ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू. लॉ ऑफ डीएमयू क्या समझाता है हमें? दिस इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लॉ. ठीक है, नो डाउट लॉ ऑफ डीएमयू में जितना वो प्रैक्टिकल है उसमें कुछ कमियां भी हैं. ठीक है, बट पहले हम उसको लॉ ऑफ डीएमयू को समझेंगे, लेटर ऑन वी विल हाईलाइट इट्स ड्रॉबैक्स. ठीक है, अब देखो बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अंडरस्टैंड? ठीक है, नाउ अंडर दिस लॉ, ठीक है, ये क्या बताता है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है. ये क्या है? साइकोलॉजिकल लॉ है. साइकोलॉजिकली का मतलब होता है कि हमारे मनोविज्ञान पर आधारित एक नियम है जो कि हमें ये बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी का कंजम्पशन करता चला जाएगा, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, इट मीन्स दैट साइकोलॉजिकली it is known to us that as far as the consumer will consume more and more consumption of a particular commodity, the satisfaction from every additional commodity will go decline. ठीक है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी. ठीक है, तो लॉ ऑफ, और ये हमें बताता है psychologically it is known that intensity of desire of a person decreases if something is available to him and her in abundant quantity. In abundant quantity. ओके, सिंपल सा नियम है हमारी जिंदगी का. ठीक है बच्चों, अगर कोई किसी भी कॉमोडिटी की अबंडेंस हमारे पास अवेलेबल है ना, इट मीन्स इफ समथिंग इज अवेलेबल टू अस इन अबंडेंट क्वांटिटी, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा ना वो कम होता जाएगा. ठीक है, अगर कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और जो चीज बच्चों हमारे पास बहुत कम होती है
उसके पीछे पीछे इंसान भागता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, ठीक है, कब बढ़ती है? देखो, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इंक्रीजेस व्हेन समथिंग इज अवेलेबल, व्हेन देयर इज अबंडेंस, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस एक मिनट, यहां लिखो, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेस व्हेन देयर इज अबंडेंस, यहां लिखो अबंडेंस, ठीक है, और यहां लिखो शॉर्टेज, यहां शॉर्टेज आएगा, ठीक है। कि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ जाती है किसी चीज की जब किसी प्रोडक्ट की उसके पास शॉर्टेज होती है, और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो जाती है जब उसके पास कोई कमोडिटी अबंडेंट फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट as a consumer consumes more and more commodity, consumer consumes more units of a particular commodity, he gets less satisfaction, yeah, you can say utility from each additional unit of the commodity. अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करता जाएगा उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। बट इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं, ठीक है, इस नियम की कुछ एजम्पशंस होती हैं, ठीक है। पहली एजम्पशंस तो ये है कि तब अप्लाई होता है when only standard unit of is taken under the consideration, only standard unit of a commodity is taken under the consideration, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक रोटी है, रोटी का पूरा एक पीस, अ पीस ऑफ अ चपाती इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, अ पीस ऑफ अ चपाती इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अ प्रॉपर कप ऑफ टी, अ प्रॉपर कप ऑफ कॉफी इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब उसमें से मान लो हम चपाती की बात करें तो एक प्रॉपर पीस ऑफ चपाती विल बी नोन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अगर उसमें से वन बाइट ऑफ अ चपाती की अगर हम बात करें, दिस विल नॉट बी नोन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे अप्लाई होगा जब एक पर्सन किसी कमोडिटी को कि स्टैंडर्ड यूनिट को लगातार कंज्यूम करता चला जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट को लेगा, स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा तो ही वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मान लो जैसे घर में आप खाना खा रहे हो, आपकी मम्मा खा रहे हैं, पापा खा रहे हैं, आप पापा खा रहे हैं तो उसमें से एक बाइट ले ली, मम्मी खा रहे हैं तो उसमें से बाइट ले ली, सिस्टर खा रही है तो उसमें से एक बाइट ले ली, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इस तरीके का बिहेव करोगे तो लॉ ऑफ डीएमयू आप पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू तब अप्लाई होगा व्हेन यू आर सिटिंग प्रॉपर्ली फॉर हैविंग अ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड यू आर कंज्यूमिंग द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ओके ओके, देन द लॉ ऑफ डीएमयू विल बी अप्लाइड, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज टेकन अंडर द कंसिडरेशन। फॉर example, a cup of tea and coffee, okay, a proper piece of chapati, etc. अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास एक ये भी बात होती है, कंजम्पशन जो है ना,
कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस. ओके, देयर मस्ट नॉट बी एनी ब्रेक इन द कंजम्पशन. ठीक है, कंजम्पशन में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर ब्रेक होता है तो वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा. कैसे कैसे होगा बताओ? एक बात देखो, अगर मान लो आप खाना खा रहे हो, कॉन्स्टेंटली खाना खाते जा रहे हो, चपातीस कंज्यूम करते जा रहे हो, ठीक है, तो हमें जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन होगी हमारी कम हो जाएगी. आप सॉन्ग सुन रहे हो, लगातार ही सुनते जा रहे हो, यू हैव नॉट टेकन अ ब्रेक, तो आपको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आप चाय पीने लगे, लगातार ही आप चाय पी रहे हो, दो एक कप पी गए, दो पी गए, तीन पी गए, चार पी गए, तो चाय से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तो इसके अंदर दो मान्यताएं हैं, दो एजम्पशंस हैं कि कंजम्पशन जो है उसमें स्टैंडर्ड यूनिट को लेते हैं, और दूसरा कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होने चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो इस लॉ ऑफ डीएमयू का यहां पर तो मैंने आपको क्या बताया? आई हैव टोल्ड यू इट्स मीनिंग. ठीक है, देन आई नरेटेड यू इट्स assumptions. ठीक है, अब लॉ ऑफ डीएमयू को आपने अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. ठीक है, अगर हम इसकी टेबल और डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा? ठीक है, मान लो चपातीस की यूनिट्स की अगर हम बात करें, अभी जैसे आपने नीचे मैंने आपको टीयू और एमयूएक्स का डायग्राम बनवाया था ना, एज इट इज इसका डायग्राम बनेगा बेटा, एज इट इज. ठीक है, देयर विल बी नो डिफरेंसेस देयर. ठीक है, अब देखो हम यहां पे बात कर सकते हैं. देखो यूनिट्स की हमने बात करनी है. ठीक है, क्वांटिटी. ठीक है, मान लो क्वांटिटी क्या है? एक्स कमोडिटी. ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. अंडरस्टैंड? अब सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यही हमने पिछले वाले डायग्राम में लिया था ना. ठीक है, वैसे तो वो ही डायग्राम है सेम जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला आपने अभी मैंने आपको करवाया है. द सेम डायग्राम विल बी ड्रॉन हियर. फिर भी मैं आपकी, क्योंकि कंसेप्ट पहली बार अंडरस्टैंड कर रहे हो इसलिए मैं आपको दोबारा वो कर्व समझा रहा हूं. ठीक है, अब यहां पर हमने लिया मार्जिनल यूटिलिटी, जब उसको कैलकुलेट किया था तो कितना आया था? 8 6 4 2 0 और लास्ट में क्या था हमारे पास? -2. ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसका कर्व देखो, यहां पर हमने देखा अगर x जो है वो क्या है? चपाती. ठीक है, अगर चपाती की फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी विल बी कंज्यूम्ड, देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी हाईएस्ट 8%, और व्हेन द सेकंड यूनिट इज कंज्यूम्ड 6%, थर्ड यूनिट will provide 4%, fourth unit of chapati will provide 2% satisfaction, fifth unit will provide 0%, because here the total utility is a maximum, so automatically marginal utility will be 0. और तो जो हमारे पास उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ले ली जाती है चपाती जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ग्रीड ऑफ दी कॉमोडिटीज, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किस में चली जाएगी? नेगेटिव में, यानी कि 0 से भी नीचे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब इसी पॉइंट को हमने डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करना है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है हमें. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? ये देखो, O x axis and here we can write O y axis. Understand? Okay, at O x axis we can write units of x commodity. ठीक है, और यहां पर हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x commodity. इज इट क्लियर? ठीक है, हमने लिखा 2 4 6 एंड 8. ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास, यहां पे हम लिख देते हैं -2. ठीक है, अब लिखा पॉइंट हमने 1 2 3 4 5 एंड 6. इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो 1 पर कितना है? 8. ओके,
2 पर कितना है 6, 4 पर 3, 2 पर 4, 5th पर 0, ओके, एंड 6 पर क्या हो जाता है -2। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट्स जो आए हैं इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा यहां पर, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है। अब पॉइंट बना दिस पॉइंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। अब यहां पे देखो यहां पे लिख लो -2। ठीक है। तो हमने क्या समझे, हम इस लेवल तक यहां पर क्या है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इस पॉइंट पर क्या हो गया 0। ठीक है। और यहां पर क्या हो गया नेगेटिव। इज इट क्लियर? ठीक है। ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमें ये तो पता है कि जैसे जैसे कमोडिटीज कंज्यूम होती हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है कम। ठीक है। बट एक बात आपको यहां अंडरस्टैंड करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है। कि कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं जहां पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता ही नहीं है। ठीक है। वहां अप्लाई नहीं हो सकता। सबसे पहले इट डज नॉट अप्लाई, देयर आर सो मैनी केसेस, देयर आर सो मैनी केसेस which do not favor the law of diminishing marginal utility. Understand? There are so many cases which do not favor the law of diminishing marginal utility. अब वो कौन कौन से केसेस हैं? ठीक है। पहला, फर्स्ट केस हम बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की। ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं ज्वेलरी की, डायमंड की, एटसेट्रा। ठीक है। अब ये वो कमोडिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है। इनकी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ये अप्लाई होता ही नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क एनी लेडी कि आप क्या गोल्ड में इंटरेस्टेड हो, क्या आप डायमंड में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर if any female wears gold and diamond, okay, then the outer personality of this lady enhances. Okay, तो अगर आप किसी लेडी से पूछते हो, महिलाओं के केस में स्पेशली, तो वो ज्वेलरी और डायमंड, सिल्वर, इन सब के प्रति बहुत ज्यादा शौकीन होती हैं। ठीक है। तो यहां पर उनको मान लो किसी पास 2 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं, ठीक है, या उसके पास एक नेकलेस है, तो वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को लेने की इच्छुक होगी। तो गोल्ड के केसेस में, ज्वेलरी के केसेस के अंदर, ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के केसेस के अंदर कभी भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद सेकेंड है बेटा रेयर केसेस, रेयर थिंग्स। कुछ रेयर कमोडिटीज भी होती हैं। ठीक है। रेयर कमोडिटीज, मान लो रेयर थिंग्स की जगह आप लिखो रेयर गुड्स। ठीक है। रेयर गुड्स में क्या होता है, मान लो कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो स्टाम्प्स हैं। ठीक है। कई लोगों को आदत होती है कि पुराने सिक्के होते हैं ना, पुराने सिक्के, ठीक है, अलग अलग तरह के सिक्के इकट्ठे करने की उनको बड़ी आदत होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को मान लो जैसे पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं वो। ठीक है। अलग अलग पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, जैसे हिस्टोरिकल कोई पेंटिंग देख ली तो उसको खरीदने के बहुत इच्छुक होते हैं। तो जो रेयर थिंग्स होती है ना, रेयर गुड्स का कलेक्शन करने का कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है। तो ऐसे केसेस पर भी हमारा लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद है मनी। ठीक है। मनी के केसेस के अंदर, ठीक है, मनी क्या है,
मनी तो आज के टाइम पे देखो बेटा, हर पर्सन जो इधर से उधर घूम रहा है, सारे काम कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? मनी के लिए, ठीक है। हमारे पास जितनी मर्जी मनी आ जाए, ठीक है, आज आप 50,000 कमा रहे हो, क्या आप 50,000 से सेटिस्फाइड हो जाओगे? कल को आपकी सैलरी लाख हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, 10 लाख हो जाती है, ठीक है, आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मनी एक वो फिनोमिना है कि जिसके जितनी आपके पास आ जाए आप उतना ही उसको प्राप्त करने की सोचते हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख जो है ना, उसकी एक लिमिट है कि जिसको खाना खाते ही समाप्त कर लिया जाता है। बट जो हमारे पास मनी की जो मान लो एक प्यास है, ये जो भूख है ना, इसको कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। ये जितनी आपके पास मनी होगी उसका ग्रीड जो है उतना ही आपके पास बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हम ये कभी नहीं बोल सकते आज आपके पास जितनी मनी है क्या आप उससे ज्यादा मनी प्राप्त नहीं करना चाहोगे? क्या आप बोलोगे कि हाँ भी मेरी तो आज मेरी इनकम 50,000 है, ठीक है, तो मेरी ये सबसे हाईएस्ट इनकम है, तो अगर मैं और ज्यादा हार्डवर्क करता हूं तो मेरी इनकम बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरी 40,000 हो जाती है, 30,000 हो जाती है, 40,000, 10,000, क्या आप अपनी इनकम को नीचे करना चाहोगे? क्या आप अपनी इनकम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट के बेसिस पर उसको फॉल डाउन करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे, क्योंकि इनकम आपके पास, मनी आपके पास जितनी है उसको आप डबल, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाना चाहते हो। तो मनी के केसेस में बच्चों कभी भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। इज इट क्लियर? इसके बाद हम कुछ बातें यहां पे एक बात करते हैं फोर्थ में, एबनॉर्मल पर्संस। एबनॉर्मल पर्संस या एबनॉर्मल केसेस में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब एबनॉर्मल केसेस क्या होते हैं? एबनॉर्मल पर्संस भी लिख सकते हो, एबनॉर्मल केसेस भी लिख सकते हो, एबनॉर्मल ह्यूमंस कर लो आप, चलो ठीक है। एबनॉर्मल ह्यूमंस, एबनॉर्मल ह्यूमंस कौन से होते हैं बताओ? जिनको शराब पीने की आदत होती है, ठीक है, स्मोकिंग की आदत होती है, नशे करने की आदत होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना बड़ी ही ज्यादा इंजीरियस होती हैं, बट अगर आप इन लोगों से पूछो तो देन दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वो कहेंगे नहीं भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। शराबी से पूछो, अभी ये रिसेंटली जो कोरोना वायरस की वजह से जो वाइन्स की जितनी भी शॉप्स थी, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, ठीक है। जैसे ही शॉप सरकार ने ओपन करी तो यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो मैनी पीपल दे वर स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यूज टू बाय द बॉटल्स ऑफ वाइन्स, ठीक है, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, एवरीबडी वाज स्टैंडिंग देयर टू बाय द वाइन बॉटल्स। अंडरस्टैंड? तो अब बताओ कि उनके ऊपर क्या, शराबियों के ऊपर, ड्रंकर्ड्स के ऊपर, स्मोकर्स के ऊपर क्या लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई कर रहा है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होती हैं फेवरेट बुक्स, रीडिंग्स, ठीक है, म्यूजिक एटसेट्रा, ठीक है। अब मान लो किसी को बुक्स पढ़ने की आदत है, ठीक है, तो बुक्स पढ़ने से तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बुक्स जो हैं दीज आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द नॉलेज, ठीक है। जितनी रीडिंग आप करते जाओगे उतनी नॉलेज आपके पास आती चली जाएगी। तो आप ये बात कभी भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास ज्यादा बुक्स हैं, मैं ज्यादा रीडिंग करता हूं, ज्यादा पढ़ता हूं, मैं ज्यादा म्यूजिक सुनता हूं, म्यूजिक का शौक है, या कुछ लोगों को पोएट्री का बहुत शौक होता है, ठीक है, वो बैठे बैठे पोएट्रीज लिखते रहते हैं, तो उनके ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई कभी भी नहीं करता, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आज की क्लास बड़ी थी, काफी बड़ी थी। मुझे लग रहा है कि आप भी सोच रहे होगे कि आज सर बंद ही नहीं हो रही, इतनी लंबी क्लास हो गई है, क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने आज कार्डिनल अप्रोच आपको समझाई है। हालांकि मैं सारी कार्डिनल अप्रोच समझा सकता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इतनी बड़ी अप्रोच जिसमें अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी रहता है, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, इतना बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आज की क्लास में हमने क्या किया, कार्डिनल अप्रोच का बेसिक स्टडी हमने किया है। बेसिक्स में मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट, वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, okay, then I told you about the features of utility, understand? After that I told you about the difference between cardinal
and ordinal approach. Understand? इसके बाद हमने क्या किया? Distinguish between टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, फिर हमने बेटा उसका एस्टिमेशन मैंने आपको समझाया, एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. फिर हमने क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी विद टेबल एंड डायग्राम. अंडरस्टैंड? एंड देन आई टॉट यू अबाउट लॉ ऑफ डीएमयू. ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डीएमयू में भी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट्स मीनिंग, its assumptions, its tabular presentation, its diagrammatically presentation, and then I have provided you critical assessment of law of diminishing marginal utility also. ठीक है, कि there are so many cases जहां पे law of DMU हमारा अप्लाई नहीं होता. ठीक है, अब देखो बेटा आज की क्लास में हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है, यू कैन से 60% चैप्टर इज ओवर. 60% चैप्टर इज ओवर. 40% रहता है. 40% में हमें क्या स्टडी करना है? वी हैव टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना है. वन कमोडिटी केस, द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ वन कमोडिटी केस एंड द टू कमोडिटी केस. ठीक है, अब बेटा मंडे और ट्यूसडे को क्लासेस लगेंगी आपकी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे. इन मंडेज क्लास I will try to teach you only consumer equilibrium with the help of one commodity case, and on Tuesday I will teach you consumer equilibrium with the help of two commodity case. Understand? And after completing these two commodities, our chapter cardinal approach will be completed. ठीक है, thank you so much students, you have listened me so patiently for so long and you all were live with me for so long. Okay, ऐसे बेटा जुड़े रहो, पढ़ते रहो. Economics is a very interesting subject and this is the purpose that Visual IAS Academy has taken initiative for you people. Okay, सबसे जितनी ज्यादा हो सके बेटा अपनी जो ऐप है Visual ऑनलाइन लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने नियर्स एंड डियर्स को, ठीक है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए दैट आई एम टेकिंग द क्लासेस, आई एम टेकिंग द बेनिफिट्स, यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स बिकॉज विजुअल आईएएस अकेडमी इज ऑलवेज स्टैंड्स देयर जस्ट बिफोर द बेटरमेंट ऑफ द future of the country. Understand? So this is our motive, this is our objective, and we always will stand here just for you. So wish you all the best. May God bless to all of you. Now we will meet on Monday with the full energy, with the full enthusiasm. Till now you have to study the today's concept. Thank you very much.